Hello everyone, welcome back to my channel. Here we are solving one integral, the special integral. ऐसा इंटीग्रल जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, राइट? सो वी आर सॉल्विंग इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ इंटीग्रेशन क्वेश्चन, स्पेसिफिकली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें कि आपके हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे, in which you will get the solution to each and every kind of question. Means whenever you will open this playlist, you just find 5 to 10 minutes video for particular type of integral. अगर आपने वो series complete कर दी, then your indefinite integral is completely done. Okay, so let's focus what this integral is saying. How to solve this integral of 2x minus 3 upon 3x square plus 4x plus 5 dx. In such kind of integral, when the numerator is given, along with that, the denominator, such that the powers is in the differ. Okay, power differ in what way? कैसे power differ हो रही है? It's a 2x minus 3 in the numerator में, 3x square plus 4x plus 5 denominator में. यहाँ पे x square and उसका जो डेरिवेटिव होता है that is in terms of x. सो वो x के टर्म्स में जो भी एक्सप्रेशन है वो न्यूमरेटर में गिवन है. सो वी विल डू दिस इन सम फॉर्म. सी, now look into this. We can solve this. The numerator we can write 2x minus 3. We can write numerator is equals to what? Some a, any constant a, multiplied with d by dx of denominator. What is denominator? क्या denominator? That is 3x square plus 4x plus 5. ये है आपका डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट b. इसके फॉर्म में हम इस न्यूमरेटर को लिखेंगे. ओके, व्हाई आपको पता चलेगा कि क्यों लिख रहे हैं. दिस इज द करेक्ट वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो लेट अस डिफरेंशिएट दिस. सो आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी गेट कैपिटल A मल्टीप्लाइड विद, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6x प्लस 4x का 4, 5 का 0 हो जाएगा, प्लस b. ये होगा आपका 2x माइनस 3 एज ए न्यूमरेटर. यू कैन राइट 2x माइनस 3 न्यूमरेटर को फिर से क्या लिख सकते हो? यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, यू विल गेट 6ax प्लस 4a प्लस b. क्लियर? नाउ 2x minus 3 is equals to 6ax plus this constant 4a plus b. 4a plus b is your constant. Okay, 4a plus b is your constant. Now on LHS as well as RHS, compare the x term and the constant term. Okay, हमें ये दो टर्म्स क्या करनी है? कंपेयर करनी है. So how you will do that? So let us first write what? You can write LHS is equals to RHS. अगर आप करोगे तो you will get 2x is equals to 6ax. This is the first equation. Second one, minus 3 is equals to how much? How much? It's a 4a plus b. It's a 4a plus b. हमारे पास दो इक्वेशंस है, दो अननोन है. कौन से दो अननोन है? दैट इज कैपिटल ए एंड कैपिटल बी. कैसे फाइंड आउट करोगे? x टू x यहाँ पे कैंसिल हो गया, a आपका बन गया 1/3. सिंपल. कोई दिक्कत इसमें? नो. देन a को अगर आप 1/3 यहाँ पर पुट करोगे तो -3 इज इक्वल्स टू 4/3 प्लस b, राइट? सो यू विल गेट b इज इक्वल्स टू -3 minus 4/3. It will become minus 13/3. Am I clear? So you are getting two values, that is a is equals to 1/3 and b is equals to minus 13/3. These are the two values you are getting. Now let us move to what we have written in the first slide. क्या लिखा था हमने फर्स्ट स्लाइड में? दिस इक्वेशन. ठीक है, ये इक्वेशन फिर से रीराइट करनी है हमें. So how you will do that? You can write 2x. You can write 2x minus 3 is equals to a. A क्या था आपका? 1/3 dy dx of dy sorry
it's dy dx of this what denominator 3x square plus 4x plus 5 and plus b क्या है आपका -13/3 simple getting yeah now this integral can be written into this form. अब हम इस न्यूमरेटर जो है 2x - 3 उसकी जगह हम इसको यूज करेंगे राइट सो यू कैन राइट इंटीग्रल ऑफ 1/3 dy dx of 3x square plus 4x plus 5 minus 13/3 डिनोमिनेटर में वही चीज रहेगी क्या चीज 3x square plus 4x plus 5 dx ओके ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका 1/3 6x square plus 4 minus 13/3 ओके अपॉन this 3x square plus 4x plus 5 dx क्लियर यहां तक अब यहाँ पे दो इंटीग्रल आपके स्प्लिट हो जाएंगे जिस माइनस के टर्म्स में क्या बन जाएगा वो 1/3 इंटीग्रल ऑफ 6x square plus 4 अपॉन 3x square plus 4x plus 5 right minus 13/3 integral of 1 what 3x square plus 4x plus 5 dx क्लियर यहां तक दिस इज योर फर्स्ट इंटीग्रल I1 बोलोगे इसे एंड इसे बोलोगे I2 ओके यू आर गेटिंग टू इंटीग्रल्स नाउ अब दो इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है हाउ यू विल डू दैट चलो सो द फर्स्ट इंटीग्रल I1 क्या है आपका 1/3 इंटीग्रल में 6x plus 4 अपॉन 3x square plus 4x plus 5 dx अब आपको पता चल रहा होगा कि डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है ठीक है अगर हमने इसको t ले लिया तो दिस विल बिकम योर dt क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन किया है सिंपल चीज है सो I1 बिकम्स 1/3 इंटीग्रल ऑफ व्हाट 1/t dt ओके सो दिस इज बिकम 1/3 ln t एंड t क्या है हमने सपोज किया है डिनोमिनेटर तो क्या बन जाएगा आपका 1/3 ln ऑफ 3x square plus 4x plus 5 this is your final answer to the I1 अब I2 की बारी ओके I2 क्या बोल रहा है -13/3 ओके माइनस मत लो प्लस में ही रखो I1 माइनस I2 करेंगे ओके 13/3 इंटीग्रल ऑफ व्हाट 1/3x square plus 4x plus 5 dx okay in such kind of questions आप क्या यूज करोगे what you will use your formulas of 1/x square plus a square सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको कंप्यूटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा कंप्यूटिंग स्क्वायर उसके लिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए 1 तो 3 को बाहर लेकर आओ क्या बनेगा 13/9 इंटीग्रल ऑफ 1/x square plus 4/3x plus 5/3 dx ओके यहां से हमने 3 को कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से फाइन सो यू विल गेट तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना पड़ेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे होगा आप यहाँ पे लिख पाओगे कि ये बनेगा आपका x प्लस 4/6 का होल स्क्वायर ओके x प्लस 4/6 का होल स्क्वायर वाई बिकॉज 2ab जो होता है उसमें आपका 2a है आपका x और b क्या है आपका कुछ भी हो जाए ठीक है जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड आउट करते हो सो 2xb इज इक्वल टू आपका क्या है 4/3 x है तो x से x कैंसिल हो गया b की वैल्यू आपकी आ गई 4/6 तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में a की वैल्यू आपकी है x एंड b की वैल्यू है 4/6 तो x प्लस 4/6 का होल स्क्वायर तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको प्लस 16/4 का स्क्वायर 16 है 36 माइनस 16/36 करना पड़ेगा डिनोमिनेटर am I getting okay so you will get what you will get 13/9 okay integral of 1/x plus 4/6 का whole square then what is that it's a 5
क्या था ये बचा हुआ 5/3 and 16/36. So 5/3 minus 16/36. So this is you will get it as 44/36. That is equals to 4 से आ जाएगा 11/9. So you will get plus 11/9 dx. Am I clear? यहाँ तक क्लियर है? Now आपके पास एक इंटीग्रल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 1/x² प्लस a² वाला, राइट? होता है कि नहीं? होता है ना? दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है वो 1/a tan इनवर्स x/a, राइट? 1/a tan इनवर्स x/a. क्लियर? इसी के अकॉर्डिंग आप कैसे चलोगे? हाउ यू विल डू दैट? यू कैन राइट दिस I2 इज इक्वल्स टू 13/9 1/a. a क्या है आपका? a क्या है आपका? √11/9. this and tan इनवर्स ऑफ x. x क्या आपका? ये पूरी टर्म क्या है? x प्लस 4/6 का x प्लस 4/6. ओके, दिस x टर्म अपॉन दिस a. a क्या आपका? √11/9. दैट्स इट प्लस c. This is your I2 and your final answer I will be given as I1 minus I2. Okay, we have find out I1, we have find out I2. I1 कहाँ पे find out किया है? This is your I1. This is your I1, right? I am highlighting this. This is your I1. Okay, along with that this is your I2. Okay, this is your I2. So the question is very clear कि आपको क्या करना है? I1 minus I2 दो इंटीग्रल फॉर्म बनेंगे, उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है. So you can easily do this, okay, in this kind of questions. So I think if you have any doubt regarding to this, please comment below. Please comment below if you have any doubt. If you like this video, please do share with your friends. Subscribe to this channel. मिलते हैं next video में. Thank you so much. Bye.